morning, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, everyone. ए लड़का, ज्यादा होशियार बनेगा। चलो देखो, तो आपको मैंने डिस्कस किया मेजरमेंट एंड मोशन, और आप उसमें जो है क्वेश्चन आंसर के बारे में आज डिस्कस करना है। वी हैव टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर। ओके, तो मेजरमेंट और उसके स्टेप्स क्या क्या था ये आपने पढ़ा होगा। और तो हम लोग क्वेश्चन आंसर पूछना स्टार्ट करें क्या? अभिज्ञान सिन्हा ज्वाइन करता है, लीव करता है, तुम लोग व्हाट्सएप पर क्यों उड़ गया वो? यस, तो यहाँ पे बताओ, व्हाट इज मेजरमेंट? अभिज्ञान सिन्हा, व्हाट इज मेजरमेंट? यस सर। व्हाट इज मेजरमेंट? तुम दो आईडी से ज्वाइन किया है रे? सर मेजरमेंट। तुम क्या दो सर? आईडी से ज्वाइन किया है? नहीं सर, पहले सर मैं 2 आईडी से ज्वाइन किया था सर, बट एक आईडी को हटा दिया सर बाद में। चलो सर अभी बोलो, तक व्हाट आ इज रहा है क्या? मेजरमेंट? Sir, measurement is a process of comparison of some unknown quantity with an fixed quantity or unit is called the measurement of an unit. ओके, और कोई एनीवन? और कोई बताएगा? चलो हम लोग, हे भगवान, कॉस्ट्यूम 9, वेर आर यू? कॉस्ट्यूम 9, अंश कुमार Yes, ओझा, sir. अंश कुमार ओझा, आर यू लिसनिंग? टाइप्स ऑफ मोशन हम लोग बताए थे, जिसमें डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन? कौन बताएगा? हर्षित, हर्षित, Yes, sir. Yes, sir. बोलो।
Movement of an object on its own axis is known as rotation. Movement of an object around another object is known as revolution. चलो ये अर्जा तुम बताओ. Yes, sir. The movement of an object on its own axis is called rotation, and the movement of an object around a central point is called revolution. Rotation, example, rotation of pen when we write. Revolution, revolution of earth around the sun. ओके. तो आपने रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ये भी इम्पोर्टेंट था. और ऑसिलेटरी मोशन को डिफाइन करेगा. क्वेश्चन 9 ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी Moving of मोशन. an object to and fro motion is called oscillatory motion. और कोई Sir, मैं बोलूं? बोलो. A repetitive to and fro motion along the same path is called oscillatory motion. तो पीरियोडिक में भी तो रिपीटेड होता है. हैं? सर पीरियोडिक टू एंड फ्रो नहीं होता इसलिए. तो और कोई एनीवन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. when do we consider an object to be in motion? When do we consider an object to be in motion? बोलो. when do we consider an object. 3 बच्चे तो अनम्यूट है ना जी. when We do should consider Yes, sir. we should consider that object in to be in motion by which it changes position due to respective of its surrounding is called motion. okay. What is Sir, the मैं बोलूं? difference between Harshit Kashyap? What is the difference between Yes, sir. rectilinear motion and curvilinear motion? What is the Motion on a difference? straight path is known as rectilinear motion or linear motion. Motion on a curved or zigzag path is known as curvilinear motion. Rectilinear motion example, a car moving on a straight road. Curvilinear motion example, a car traveling on a hill. चलो अर्जा तुम बताओगी. वीडियो ऑन करो. सर ऑन तो है. तो पिक्चर्स कहाँ तुम्हारा आ रहा है? सर ऑन है लेकिन. Sir, black. Why does a measurement need both a number and a unit for its complete specification? Why does a measurement need both a number and a unit for its complete information? Are you listening? Yes, sir. Sir, can you repeat? Why does a measurement need both a number and a unit for its complete specification? Sir, मैं बताऊं? रुको अभी वेट करो थोड़ा. We देखो. need अर्जा बोलो जल्दी. Sir, we need both number as well as unit to express the measurement in complete way. yes sir, सही answer in a proper and complete way होगा. Okay. चलो जी नेक्स्ट. हर्षित वही क्वेश्चन को जवाब दो. Why does
Why Sir, does question. a measurement needs both a number and unit for its complete specification? Numerical value gives the information Measurement. that how many times of the given unit, whereas unit is a standard quantity. So with the help of numerical value and unit, we can measure what we obtain, just like as suppose we measure the length of the blackboard, length of the bench, that is 4 meter. Here 4 is the numerical value and meter is the unit. So in this 4 times of the given unit meter, you know, so we can say complete, it gives complete information about the measurement. Okay. Yes, sir. Okay. Next, why is a foot step or a hand span not used as a standard unit of length? Why is a foot step? Why is a foot step? सर मैं बोलूं? सर मैं Sir, बताऊं? can I answer? और कोई क्यों नहीं बोलता है जी? क्वेश्चंस को समझ के बोलना है ना, उसे आंसर सर मैं देना बोलूं? है। तो बहुत बच्चे साइलेंट मोड में रहते हैं, दैट इज नॉट गुड, है ना, वो गुड नहीं है। आपको इंटरेक्ट होना होगा, ठीक है? तो आप जो है, जैसे सपोज करो ऋषि ज्वाइन किया हुआ है, देखो तो Yes, sir. तो उसने क्यों नहीं जवाब? अपने से अनम्यूट नहीं हो पाता है? नो No, sir. सर। नो। सर वहां पे दिखाता है द होस्ट हैज नॉट अलाउड टू अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, ठीक तो है, नहीं तो हल्ले करेगा ना सर, है ना, कुछ भी बोलने सर लगेगा। नहीं करेंगे, आप एक हैं? बार कर दीजिए। क्या हुआ? सर नहीं करेंगे अब हल्ला, एक बार आप कर दीजिए, और जो हल्ला करेगा उसको निकाल दीजिएगा। वह हैंड्स रेज करे, जो क्वेश्चन राइज करना चाहता है वह हैंड्स रेज करे, मैं उसे अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है? तपन तान्या? सर मैं इसका आंसर दूं? नो। यस सर। सर क्वेश्चन एक बार तपन क्या है, फिर से तान्या बोलिए ना। बताओ, व्हाई ये फुट सर स्टेप और ये हैंड स्पेन नॉट यूज्ड, नॉट यूज्ड, है ना, एज ए एज अ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एज ए स्टैंडर्ड। यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड लेंथ। यूनिट ऑफ लेंथ। रे शांत रहो, ठीक है? Sir, the length of footstep or a hand span may be different for a different person, which cannot be accepted worldwide, so they cannot be used as a standard unit of length. और एनीवन? चलो जी, सर सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। Footstep or a handspan are not used as a standard unit of length because they do not give a correct measurement of an object. ओके, सर मैं बोलूं? देखो, और अर्जत तुम बताओ। Sir, foot span or hand span is not used as the standard unit of measurement because the length of one's hand span may be different from others, so it is not be accepted worldwide. ओके, दैट Worldwide. मीन्स फुट स्टेप और हैंड स्पीड डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, है ना, पर्सन्स लेंथ, है ना, पर्सन्स हाइट, वी कैन से it varies from person to person, therefore it is not used as a standard unit of length। क्योंकि फुट स्पेन छोटा बच्चा का छोटा होगा, उसकी हाथें भी छोटी होती है, लंबाई भी छोटी होती है ना, बड़े बच्चों का बड़ा होगा, है ना, तो ये सेम नहीं होगा, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और साइंस बेस्ड ऑन द फैक्ट,
साइंस के फैक्ट्स पे आधारित है और वह मैन टू मैन नहीं वेरी करेगा। इट इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल, ये सब के लिए एक जैसा है ना। इसीलिए हमें जो है आपको हमेशा जो है इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस। सर जो मैंने बोला वो सही नहीं था। कौन बोला? सब सर सही है, को- जो बोला वो सब सही है, लेकिन जो समझ लिया उस पर ही ध्यान दो। उसमें अमेंडमेंट हो सकता है ना जी। कसम खाया हुआ है कि वही रहना चाहिए? कसम थोड़े खाया हुआ है कोई नो सर। है। ये दो तरह के नो आंसर सर। होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्टिव आंसर सेम होगा, है ना, वह सेम होगा फॉर ऑल ऑब्जर्वर, बट सब्जेक्टिव आंसर वेरी फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जर्व, है ना। इसलिए Yes, sir. ऑब्जेक्टिव का आप चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, है ना। whereas subjective answer cannot be solved, cannot be checked by the help of computer। okay, क्योंकि subjective answer यस। varies from person to person, language varies from person to person। okay, am I right? यस सर। Yes, यस sir. सर। तो आप देखिए, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ए पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। स्टेट द डिफरेंस, अभिज्ञान सिन्हा, स्टेट स्टेट द डिफरेंस बिटवीन। आप अनम्यूट अनम्यूट अपने कर लेते हैं, जब मैंने अनम्यूट कर दिया तो वेट करना चाहिए ना जी। आपके यहाँ आवाज़ आती है तो आप सोचते हैं चलो बंद कर दे, तो उसको पीस इन्वायरमेंट क्रिएट करो, डोंट डिस्टर्ब। उस तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिजिटल दुनिया होती जा रही है। जो समस्या आ रही है उसमें डिजिटल पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। दिखता है बजट भी पास हुआ, उस पर डिजिटलाइजेशन पर ज़्यादा फोकस किया गया। तो तुम्हें जो है आपको वेट करना सीखो, है ना। उस सभी चीज़ के एडवांटेज होते हैं और डिसएडवांटेज होते हैं, है ना। मैं आपको आपके फेवर में दे दूं कि म्यूट ऑन म्यूट तुम कर सकते हो, तो उसका डिसएडवांटेज कुछ बहुत कुछ मिलेगा, मिलने को आता है। अगर फास्ट के फेवर में रहेगा तो क्या है, जब तुम चाहोगे तुम्हारे एकदम तुम्हारे ही फेवर में, तुम्हारी ही भलाई के लिए होगा। ओके, तो आप कुछ बच्चे जो हैंड अगर अनम्यूट कर दिया है तो मेंटेन इट। अनम्यूट करने के बाद आप मेंटेन करो और अपने घर का इन्वायरमेंट को पीस रखने की कोशिश करो। ओके, एम आई राइट? Yes, यस sir. सर। है ना। अब बार बार Yes, sir. तुम्हें अनम्यूट करना डिस्टरबेंस क्रिएट होगा ना जी। Yes, sir. होगा। यस नहीं, सर। आपको लगे कि मैं डिस्टरबेंस में हूँ, मैं कह नहीं सकते हूँ पापा मम्मी को, है ना, क्योंकि वो सीनियर्स है तभी ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो भी प्रॉब्लम आपको समझेंगे। ओके, एम आई राइट? Yes, sir. यस सर। तो आप पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। कौन बताएगा? सर मैं Okay. बताऊं? सर मैं बताओ। बताऊं? आपको चांस दिया गया, अभिज्ञान सिन्हा। Yes, sir. Yes, सर sir. मैं बताऊं? अभिज्ञान सिन्हा बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Uh, periodic motion. Periodic motion. A motion. A motion. A motion. Sir, एक मिनट। किताब देख रहा है, नो सर, किताब याद देखना तो करने पक्का की पता रवि है। डालो। आप स्कूल खुलने के करीब करीब है, ये डिस्कशन यस हो सर, रही है 6 तारीख 6 इसका। तारीख 6 या 7 से खुलने वाला है सर। हाँ, तब तो आपको पहले से ही मालूम है। तो आप और यस सर। एक वो खुलेगा जैसे ही कि आपका एग्जाम पीरियोडिक 4 PT4 बाकी है ना जी।
पीरियोडिक Yes, टेस्ट यस sir. सर, चालू हो PT4 जाएगी बाकी है सर। ने। सर मुझे मालूम है, एक ही दिन। तो पीरियोडिक टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करना होगा ना आपको। तो आप प्रिपरेशन का मतलब क्या है कि एनी टाइम एटीएम की तरह रेडी रहो, कोई भी पूछे आंसर देने के लिए रेडी रहो, तभी ना आप अच्छे स्टूडेंट कहलाएंगे। यस सर, हेलो सर, यस सर, पीरियोडिक मोशन और ये आप किताब देख के बता दोगे तो एग्जाम में किताब ले जाओगे? नो हैं? सर, नो सर, कैसे ले जाएंगे? तो A motion which repeats है, itself after ये a हैबिट बन जाएगा ना जी, ये हैबिट बन जाएगा तो याद नहीं होगा, उस समय में ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। इसीलिए आप बिना किताब के हेल्प से आंसर देने की कोशिश करो, यानी याद रखो। कल ही मैंने टास्क दे दिया था ना कि तुम्हें Yes, sir. क्वेश्चन आंसर रट के आना है। Am I right? Yes sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट, हाँ बोलो, इसका डिफरेंस बोलो। A motion which repeats itself after a regular interval of time is called periodic motion. Non-periodic motion, motion which doesn't repeats itself after a regular time of interval. Example or periodic motion. Periodic motion. Earth moves around the sun. Is the example of periodic motion, and example of non-periodic motion is a footballer kicks a ball. Which type of watch is used to measure time interval in a Stopwatch. meter race? Stopwatch, वेरी गुड। तो अब हमें E3 का आंसर रीडिंग देगा हरिओम कुमार। रीडिंग भी नहीं दे पाएगा, देखो अनम्यूट करेंगे नहीं करेगा। हरिओम, हरिओम, संस्कार श्री, आयुष कुमार, सब केवल ज्वाइन कर लेता है, बस हो गया काम खत्म, उसका काम हो गया। कहाँ रहते हैं सर जी? हैं? अब रहते कहाँ हैं? सर पीरियोडिक मोशन रीड करना है। E3 का सर ऋषि ना, देना है E3 का। सर ऋषि इंग्लिश के क्लास में एक्टिव रहता है सर, हर क्वेश्चन का आंसर बताता है सर इंग्लिश के क्लास में सर, उसके बाद पता नहीं सर कहाँ चला जाता है। कौन? सर ऋषि इंग्लिश के क्लास में पूरा तरीके से एक्टिव रहता है सर, सब कुछ रीडिंग करता है सर। अच्छा, इंग्लिश कौन पढ़ाते हैं? सर अभी रिसेंट में प्रियंका मैम पढ़ा रही है। और सब मैं सर सर प्रियंका पहले मैम परमानेंट पढ़ाएंगे। हैं? सर प्रियंका Sir, मैम ही the हम लोग की lecture इंग्लिश के में टीचर है। पढ़ाएंगे। अच्छा, तुमको मालूम चल गया? Yes, sir. सर अच्छा, तो चलो जो भी है अपनी जगह है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। E3 क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर दो। मैंने किसको टास्क दिया ये? हरिओम Sir, कुमार। हरिओम अनम्यूट हुआ? नो सर। देखो इनएक्टिव Sir, वो भी संस्कार 16 श्री, बोलता है। संस्कार श्री, यस सर। सर आप म्यूट हो गए, सर आप म्यूट हो गए हैं। यस सर आप म्यूट हो संस्कार गए। श्री E3 क्वेश्चन को रीडिंग देना है पहले, इसके बाद आंसर देना है। सर क्वेश्चन नहीं थी का राधा वाज परफॉर्म। बोलते जाइए। यस सर, यस सर। सर राधा was performing an experiment in the science laboratory. Sir, Radha was performing an experiment in science laboratory. The meter scale that she was using to measure the length of a string was worn out between 1 cm and its 2 cm marks due to overuse. Overuse. A. Yes, sir, overuse. A. She measures the length of string by keeping its one end
at the 3.0 cm mark if the other end of the string by keeping its the ends of the string कहाँ keeping पर its भाग one गया रे, end कहाँ at चला गया? बीबीसी लंदन भाग गया? सर कौन भाग पीछे गया? हो गया mark if the other end of the string reads 92.8 cm find the length of the string. B, हाँ, write the precaution इन दिस to be केस क्या followed करना when होगा? Precautions. क्योंकि उसका जो स्केल था ज़्यादा यूज होने पर वो डैमेज हो जाता है, तो वो 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में डैमेज है, इसीलिए लेकिन काम चलाना है उसी से। वो फादर मदर का प्रॉब्लम वो समझ रही है, तो उसने क्या किया, 3 सेंटीमीटर से मेजरमेंट किया और 92.8 पर लास्ट इन गया। तो इस दोनों में से माइनस कर देंगे, 92.8 सेंटीमीटर माइनस सर 8.8 89.8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सर आएगा 80 आंसर। सर 89.8 सेंटीमीटर आएगा सर। 89.8 सेंटीमीटर उसका आंसर होगा। यानी उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट, यानी हमारा स्केल खराब ही रहेगा तब भी हम काम कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का यूज करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूटिलाइज करना है। ओके, राइट? Yes, sir. यस सर। तो आप अब है बी कि राइट द प्रिकॉशन followed when a meter scale is being used for measuring a given length। तो साइंस है, साइंस बेस्ड ऑन द फैक्ट्स है, उसमें ये चीज़ को बहुत बड़ी ध्यान से रखना पड़ता है कि एक्यूरेसी हो, वो भी एक्यूरेसी इतनी हो, यानी कि उसमें एरर जो है वो 10,000 में 1 आए, है ना, 0.01% होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको 5 पॉइंट्स मेंशन पॉइंट्स है याद कि आप रखना है। कैसे कैसे आप मेजरमेंट करोगे ताकि एरर नहीं आए, है ना। एरर आने पर एक एक सेकेंड का इम्पोर्टेंस है, 1 सेकेंड के कारण भी किसी की जान जा सकती है और बच भी सकती है ना। तो इसीलिए आप ये ध्यान में रखना है कि हमें एरर नहीं आए, एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। तो बी का जो आंसर है, जो मैंने बार बार कहा, ये 5 पॉइंट्स सबको याद रखना होगा, यही आंसर है। सर मैथ्स सुना हूँ मैं बहुत अच्छे से आती हूँ। हाँ, तो चलो यार, क्या बोलो वह 5 पॉइंट्स जो याद कर ली है। Yes, sir. Number 1, place the scale in such a manner so that its divisions are very close to length to be measured. Number 2, keep the scale exactly along the length to be measured. Number 3, the zero mark of scale should coincide with one end of length to be measured. Number 4, keep the eye vertically above the end point in the line with the reading to be taken. Number 5. Do not use worn out or broken portion of the meter scale for measuring length. ओके, और कोई, किसी को और याद है? तपन तान्या याद है? अभिज्ञान याद है? नो सर। हैं? सर अभिज्ञान मुझे सिर्फ कितना 3 पॉइंट याद है? सर नहीं बस याद 3 पॉइंट याद है। है? सर मैं बताऊं? तपन तान्या बोलो। यस सर। वीडियो ऑन कर लो। तपन तान्या, आर यू लिसनिंग? सर म्यूट है। चलो, तो अभिज्ञान सिन्हा क्या बता सकते हो? चलो, कौस्तुभ नारायण तुम भी बताओ। यस सर। यस सर, बताते हैं। Place the scale in such a manner that its division बुक सामने रखो, तो are बुक सामने in रखो।
सर बुक तो निकालिए। बुक ऐसे रखो बंद करके। सर बुक बैग में है। कौस्तुभ, सर बुक बुक बैग में है, बैग में है। निकाले ही नहीं है तब सर भी अभी। कर लो कौस्तुभ। चलो बोलो ठीक है सर, बोलो। निकाल के लाते हैं। आते हैं सर, निकाल के लाते अभिज्ञान सिन्हा, सर तो मैं आंसर दो दो आंसर। विज्ञान सिन्हा। अभिज्ञान सिन्हा, सर मैं भी वही बोल रहा था। सर मैं बुक सामने रखा हूँ, देख लीजिए, साइंस हाँ का बुक है बोलो, सर। आप बोलो ना। Sir, the edge of the scale should be parallel to the length of the measured. Sir, second point, the zero mark, the zero marked, the zero mark of the scale should concord with one end to the another end. कौन So साइड है तो third, कंकर्ड बोलेगा, है ना। अपनी कौन साइड, सॉरी। प्रोनाउंसिएशन पे जोर देना है, डिक्शनरी को यूज करना है। आजकल तो बहुत इजी तरीका हो गया, तुम्हें वीलिंग पावर स्ट्रांग होना चाहिए। गूगल यस सर, ट्रांसलेट है, सारी टेक्नोलॉजी सर को मेरे यूज पास है करना सर, है। गूगल ट्रांसलेट डिजिटल भी है। इंडिया हो रही है। सर आ गया कॉस्ट्यूम बुक लेके। क्या हुआ? सर थर्ड Yes, पॉइंट sir, होगा, आगे द book मीटर लेके। स्केल शुड नॉट बी worn out और ब्रेक। सर मुझे तो 3 पॉइंट्स याद है, बोला था शुरुआत ही में सर। चलो कॉस्ट्यूम बोलो। Yes, sir. Place the scale in such a manner that its divisions are very close to the length. First हो गया sir. Second, keep the scale exactly so that the measurement is correct. Sir, उसके बाद सर दो ही याद है, भूल गए। भूल गया, सर मुझे भी 2 याद है। सर भूल गए। पकड़ा गया। सर मुझे 3 कॉस्ट्यूम पॉइंट्स याद है। याद सर रखा मुझे 3 करो, याद थे सर। घर का टेक्नोलॉजी यूज नहीं करो, जुगाड़ एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो यस अब सर। है ना। चलिए, और कोई? हरिओम, तेजस्वी और एनीवन? सर हरिओम ना मैथ के क्लास में एक्टिव रहता है सर। अच्छा, और ये सर साइंस और अनिकेत आनंद? सर सारा कुछ तो सारा क्लास करता है, पता नहीं सर आप ही का क्लास क्यों नहीं करता है। अच्छा, उर्वी, जयंत कुमार, माई कुमारी, सब सो जाता है। 12 बजे का टाइम है ना, इसलिए सो यस जाता सर, है, शायद इसमें यस खा के सो जाता है। नो, यस सर, खा के सो जाता होगा। सर सुबह उठते के साथ यस सर, मैं भी अभी खाना खाया हूँ सर। मैं भी अभी सर मैं भी हाफ आवर पहले ही खाना खाया हूँ। सर हम तब तक चलो ठीक खाएंगे। है। जयंत कुमार, आर यू लिसनिंग? अनिका श्री, सर जय योमसी, आराध्या जाओ, मुझे पढ़ाई करना है। अगले साल से तुम्हें भी भेज देंगे। जाओ पृथ्वी प्लीज संगम। आराध्या। ए, बात नहीं करना है। शशांक शेखर। तो यस सर। नेक्स्ट, तो ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीटेड हो चुका ना जी? यस सर। यस को- सर। यस सर। अब नेक्स्ट कौन सा चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे? सर रुक जाइए बताते हैं। सर चैप्टर नंबर 8। नेम ऑफ द चैप्टर बोलना है ना। Structure and function of the living organisms. Sir, plants. Sir, structure and function of the living organisms, plants. ओके, और तो इस चैप्टरों में आपको याद करके लाना है कीवर्ड्स। यही होमवर्क हो गया। और तपन तान्या, Yes, sir. तुम याद नहीं कर रही है आजकल? नहीं नो सर, याद है सर, 2 पॉइंट्स। याद है? हाँ सर। तो 5 पॉइंट्स को बोलो। सर 2 ही याद है। 2 ही याद है तो कैसे याद हुआ? कितने पॉइंट्स कब दिया गया? टास्क रिपीट हो रहा है, रिवीजन हो रहा है ना जी। तो यू शुड टू थिंक। नो सर, याद है बट कंफर्म नहीं है बिकॉज अच्छे से नहीं है। तो बोलो, जो भी गलत सलत बोलो लेकिन
सर अच्छे 5 से याद पॉइंट है तो तुमको बस 2 लाना ही है, पॉइंट है। तुम्हें चाहे गलती हो तो कोई बात नहीं, बोलना है 5 पॉइंट, होने दो गलती। Okay, sir. ओके Sir, the scale should be placed to the side of the object being measured. Second, it should also सर be लगता है in. साइड में कॉपी खुला हुआ है सर, कुछ नहीं खुला हुआ है मेरा ऐसी अरे वो मेरा बुक ऑनेस्ट सामने है। लड़की है, साइड में उसको बार बार आप क्यों देख रही हो? दी ऑनेस्ट पर्सन मत बनाओ। वेट वेट, And second, it should also be in touch with the object being measured. And third, नहीं याद है सर, नहीं होने वाला है। नहीं याद है सर थर्ड अच्छे से। ठीक है, तो आप तैयारी करके आना है। ओके Yes. यस सीजन, सर। तो आप उस चैप्टर नंबर कितना बोले आप? Chapter number 8. स्ट्रक्चर Chapter एंड number 8. फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको आप पढ़ के प्लांट्स आएंगे। सर, हैं? सर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स भी है सर। प्लांट्स स्पेसिफाइड हो गया कि यानी आप एनिमल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, केवल प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ये कहना है उसका। ओके, तो Yes, sir. आपको Yes, अब sir. टाइम हो चुका है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आपको होमवर्क मिल गया है असाइनमेंट कि आप चैप्टर 8 का कीवर्ड्स याद करके लाएंगे और इस मेजरमेंट एंड मोशन का क्वेश्चन आंसर याद कर लेंगे। ओके, थैंक यू। Okay, एंड sir. यस सर, रट्टा मार के आएंगे कल। रट्टा नहीं मारना है, समझ के आना है, ठीक है? सर एक एक लाइन